Okay, Kardom and Namaste. This is Karbi Blood. Live videos from Delhi. So we are from Assam. Karbi Anglong district. We are now in Delhi in order to protest the government. So the reason we are protesting here in Delhi is that in the Constitution of India, Article 244 has been written, which means state within state, autonomous state within state. So still our demand is still pending. So the government, the BJP government has promised many times. They visited Karbi Anglong and they promised and they give their word that if the BJP government came into power, they will be giving us this Article 244A, which means autonomous state. But still the government has not provided us almost to complete 10 years. Even Home Minister Amit Shah has also visited Karbi Anglong, and also he promised to give us our demand, to give us state within state, but still it's pending. Even Rajnath Singh, Defense Minister, he also visited Karbi Anglong, and he gave his word that if the government of BJP came to power, the BJP government will be providing us state within state, which means our rights, Article 244A. But even the government, after the BJP won the election, after they came into power force, even they forget everything what they have promised. So we are here in New Delhi to protest against the government to fulfill our long-standing demanding Article 244A. So I would like to request all the people from Karbi Anglong and Dima Hasao to please do support us in this protest. It will be good for us because it's not about the new things. It has been written in Article 244A, and we are fighting for our right. And even I would like to request all the peoples from Karbi Anglong and Dima Hasao to do please pray for us in order to succeed in this protest. We will be protesting in peace, not in violence. So now we are heading towards Jantar Mantar in order to protest the government. So जहाँ पे प्रोटेस्ट होता है वहीं पे हम लोग जा रहा है. तो ये देखो, अभी फ़िलहाल हम लोग कैब से आए तो 3 पर्सन ही आए. फ़िलहाल हम लोग का जितना भी साथी है, हम लोग करबी अंगलोंग दिमा हासाओ से आए हैं. जितना भी लोग है सब प्रोटेस्ट, जहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ पे पहुँच चुका है और प्रोटेस्ट भी शुरू हो रहा है, बोल रहा है. तो हम लोग अभी जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए. सो प्लीज़ डू सपोर्ट अस एंड प्रे फॉर अस so that our protest will be success, will get success as soon as possible. केरला हाउस, केरला ज़्यादा खाता होगा शायद. फिलहाल यहाँ पे जनता मतलब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. नॉट वी आर ओनली फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज, दे आर हियर इन जंतर मंतर protesting for their rights. So we, the people of Karbi Anglong and Dima Hasao, are also here in Jantar Mantar protesting for our right. We are demanding के लिए अगर जरूरत पड़ेगा हम लोग अपना पॉकेट से 100-200 रुपया देगा, है कि नहीं? ये नहीं सकेगा, नहीं कि नहीं सकेगा, ये नहीं लगेगा. ऑटोनोमस स्टेट के लिए है, हम लोग का आने वाला बाल बच्चा के लिए है, वो लोग का नौकरी के लिए है, वो लोग का पेट के लिए है, ये नहीं लगेगा. तो ज्यादा कुछ नहीं बोल के इतना छोटा सा भाषण लेके मेरा ये वक्तव्य यही समाप्त करते हैं. No, namaste. Namaste. Haji Mayashi. And pray globally. Thank you, Juntai Kardom. Lasinile aja pakai wala gambarnya tuh, ini tuh kaca song mangeng tonang dulu. We came all the way from Karbi Anglong, Dima Hasao to Delhi, not just for enjoying our life,
or just enjoying? सब हो चुका है ऑलरेडी। इसमें अभी तक हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। हाँ, डेवलपमेंट पैकेज वगैरह मिल सकता है, लेकिन जो ऑटोनोमस स्टेट का जो सपना है ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए मैं माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, जो रक्षा मंत्री है, उनको मैं बार बार यही विनती करूँगा कि ये जल्द से जल्द जो बिल है जो 2016 में और जो 2023 में जो अभी हाल ही में जो बिल प्लेस किया है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए और इम्प्लीमेंट करके ऑटोनोमस स्टेट दिया जाए। बीजेपी के कई नेताएं कार्बी आंगलोंग और दिमासाओ में जा चुका है। अपनी चुनावी प्रचार के दौरान दिमासाओ और कार्बी आंगलोंग के नेताओं को ये आशा देके गया है कि जब बीजेपी सरकार में आ जाएगा तो आर्टिकल 244A जो एक कार्रवाई का प्रचार में बीजेपी के कई नेताएं प्रॉमिस किया हुआ है। मगर बीजेपी का भी सेंट्रल में भी बीजेपी हम लोग का काउंसिल में बीजेपी है, मगर अभी मौजूदा सरकार बीजेपी का 2 टर्म हो चुका है। मगर आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सिंगल वोट भी नहीं किया गया। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ और जो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं ये बोलना चाहूँगा कि दिमासाओ और कार्बी आंगलोंग का जितना नेताएं हैं आप बुलाइए और आर्टिकल 244A के बारे में समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बोलने से एक देश को संविधान चलाता है और उस संविधान में ही ट्राइबल लोगों के लिए एक सुविधा दिया गया है। वो सुविधा आर्टिकल 244A के जरिए से ही एक प्रोविजन होता है। तो पहले आप समझिए कि आर्टिकल 244A इतना जरूर क्यों है दिमासाओ और कार्बी आंगलोंग की लोगों के लिए। तो भी हम लोग का जो MP है फॉरेन सिंह में और जो हम लोग का दिमासाओ का CM और कार्बी आंगलोंग का CM और कई जो रिप्रेजेंटेटिव है और कई MLA है, उन लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज प्रेशराइज द गवर्नमेंट, क्योंकि अभी 40 साल हो गए हैं, तो 40 साल हो चुका है मगर आर्टिकल 244A ने कुछ भी काम नहीं किया है, कुछ भी इनिशिएटिव करने की तरफ नहीं किया गया। सिर्फ 2-3 बार जैसे MOU साइन किया हुआ है कई मिलिटेंट ग्रुप से, चाहे वो दिमासाओ से हो या फिर दिमासाओ से हो। जो हाल ही में जो किसी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उस पीस अकॉर्ड में भी आर्टिकल 244A को जिक्र नहीं किया गया। तो डेवलपमेंट पैकेज देने से वो कार्बी आंगलोंग और दिमासाओ का फाइनल सोल्यूशन नहीं है। तो कार्बी आंगलोंग और दिमासाओ का फाइनल सोल्यूशन है आर्टिकल 244A को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी MP इलेक्शन आने को तो आर्टिकल 244A की इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर MP प्रेशराइज नहीं करेगा, MLA प्रेशराइज नहीं करेगा, CM प्रेशराइज नहीं करेगा तो कौन कराएगा? क्योंकि इस डेमोक्रेटिक कंट्री में बीजेपी सरकार को एक मेजोरिटी देके हम उसको सरकार बनाए, तो उन लोगों को भी जनताओं की जरूरत को समझना चाहिए। तो दिमासाओ और कार्बी आंगलोंग की जनताओं का दिमासाओ और कार्बी आंगलोंग का जो सपना है वो इम्प्लीमेंट होने से ही सपना पूरा होगा। इसलिए इन फ्यूचर अगर बीजेपी सरकार जो ट्राइबल राइट्स को नहीं समझते, जो आर्टिकल 244A नहीं करने से यहाँ पे माहौल खराब हो सकता है, क्योंकि अभी बीजेपी का जो 2 टर्म हो चुका है, 2 टर्म होने के बावजूद एक बार भी संविधान में पार्लियामेंट में उसका जिक्र नहीं किया गया। तो मैं सर को भी यही बोलना चाहूँगा, अगर एक सेशन आ जाए तो आप प्लीज पार्लियामेंट में उसका जिक्र कीजिए। तौन के अलाम नहीं तुम तक नहीं पा atau jone pe जोन लोकक लो ना aku non ceng tuji tapi 3 line हुई झारी son 3 line हुई झारी और bangke parti AMP tu bangke parlimen ang tan namong le arlo sido nai mane finance bill bini la pen pen apke pas video la so apu thaksi la so hui ke ka झारी lo la si malom su aport ameni li na je tong long ni li ameni sam thu lo je hem break bang so ka che song long ke ni li ta inut lo tarbia khai long je hem break ning hang ku to paklang non la lo la si an su se nang le tum uthot कार्बी आंगलोंग नाम पेन कार्बी आंगलोंग आरा तमे पिनी थेगलोंग पोजे अलग लीडरशिप पेन संगठन का जो नेतृत्व दे रहे हैं उन सभी को मेरा नमन। और मैं अभी कार्बी भाषा में बताया गया है कि
जो हमारा मांग है, पहले इसके पहले जो सेशन हुआ था उसी में मैं पार्लियामेंट में ऑटोनॉमस स्टेट के लिए मैंने अंडर रूल 377 रूल के तहत मैंने एक लिखित रूप से दिया है ऑटोनॉमस स्टेट के बारे में, और इसी रिप्लाई में होम मिनिस्ट्री ने दिया। ये रिप्लाई हमारा जनरल सेक्रेटरी सिंह तिमुंग का पास है, आप लोग देख लीजिए, देख सकता है। और जो प्राइवेट मेंबर बिल मैंने लाया अभी यहाँ आने से पहले मेरा सौभाग्य रहा कि वो MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम नित्यानंद राय से मुलाकात हुआ और इसी बारे में मैंने पूछा, तब वो गंभीरता से देखेंगे बोला, हमको आश्वासन दिया है। तो उम्मीद करता है इस सेशन में शायद मेरा जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो उठा पाऊंगा, और इसी दिशा से मैं आपकी सभी के सामने ये बात रखता हूँ। और अच्छा लगा, और हमारा जो मांग है, हमारा जो आंदोलन है, ये तो जारी रहेगा जब तक हम लोग ये ऑटोनॉमस स्टेट हासिल नहीं होगा, तब तक हम लोग इसी तरह हम लोग धरना करते रहेंगे। हम लोग डेमोक्रेटिक वे से, डेमोक्रेटिक मीन से हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और इसी 2 शब्द के बाद मेरा अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। Netung Sangse. No rest. Netung Sangse. No rest. प्रदर्शन और इसकी मांग है भारत की संविधान में जो आर्टिकल 244 धारा क के तहत जो ऑटोनॉमस स्टेट विद इन स्टेट आसाम के ये मांग लेकर ये प्रदर्शन हुआ है। और मेरा उम्मीद है, और मेरी तरफ सांसद होने के नाते मेरी तरफ से भी मैं इसका पहले जो सेशन हुआ था इसलिए मैं अंडर रूल 377 के तहत मैंने लिखित रूप से दिया है, इसका जवाब भी मिला है। और इस सेशन में मैं प्राइवेट मेंबर बिल ऑटोनॉमस स्टेट के लिए मैं लाया है, और मेरा विश्वास है इस सेशन में और मेरा प्राइवेट मेंबर आ जाए। पहले भी बहुत बार आवाज़ आवाज़ तो उठाना तो पड़ेगा, जब तक हासिल नहीं होगा तब तक ये आवाज़ तो रहेगा ही। थैंक यू। आप क्या बोलेंगे? अभी इंडिया में भी बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, दोनों काउंसिल में बीजेपी है। और आप लोग का एक मैनिफेस्टो में था आर्टिकल 244 है। तो अभी रूलिंग में आप MP भी हो वहाँ का, कब तक होगा? कब तक होगा ये तो कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन हमारा जो आंदोलन है ये तो जारी रखना है। और इस आंदोलन में मैं भी एक हूँ, और इसी मांग को लेकर मैं भी संसद सदन में मेरा जो कर्तव्य है मैं पूरा करते जा रहा हूँ और करते रहेंगे। बस उम्मीद है हमारा ये बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी जी के समय में भी हमारा ये मांग हासिल होगा। अभी क्या हम यही आशा कर सकते हैं कि इस बार जो है शायद ये जो ऑटोनॉमस मांग रहे हैं ऑटोनॉमस स्टेट जो मांगा जा रहा है वो फुलफिल हो सकता है? क्योंकि उन लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पहले भी जो थे हमारे MP टीपू से और काफी जो डिमा हसल थे वो भी पार्लियामेंट में कभी कुछ भी नहीं कहते थे। तो इस बार क्या हम ये सोच सकते हैं कि हम तो बोलते आ रहा है, हम जब पहली बार सांसद बन के आया तो मेरा पहला भाषण बस ऑटोनॉमस स्टेट का ही है, और 2020 में जो क्वेश्चन की तहत से मैं पूछते जा रहा है, और अभी भी प्राइवेट मेंबर बिल अभी मैं कोशिश कर रहा है। और अभी आने का पहले वो MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर नित्यानंद राय से बात हुआ है, वो भी आश्वासन दिया है इस सेशन में वो प्राइवेट मेंबर बिल। No namaste. No namaste. No namaste. We want. सो हम लोग का प्रोटेस्ट फिलहाल आज के लिए ख़त्म हो चुका है। सो ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर घर जाने वाला है। सो दिल्ली टू गुवाहाटी से फ्लाइट से जाने वाला है। सो बाय बाय एंड से सी यू।